आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए आप देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के 14 युवक उज्बेकिस्तान में फंसे हुए परेशानी में हैं। उन्हें वापस लाने की उन युवकों ने पीएम और सीएम से किया अनुरोध। केंद्र और बीजेपी जेडीएस की कठपुतली के रूप में कर रहे हैं काम। राज्यपाल के नोटिस जारी करने पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित समाधान आवश्यक, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। शाह से मिलने दिल्ली आने की बात सच साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा, अजित पवार की विपक्ष को चुनौती। इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले की एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। डॉलर में कमाई का सपना लेकर विदेश गए कन्नड़ा लोगों की दुख भरी कहानी। एक घटना जिसमें कर्नाटक के बीदर कलबुर्गी जिले के 14 लड़के विदेश में मुसीबत में फंस गए हैं। उज्बेकिस्तान में काम की तलाश कर रहे इन लड़कों को कुछ करके इन कन्नड़ियों को देश में वापस बुलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम सिद्धरामैया से इन परेशान हाल लड़कों ने अनुरोध किया है, जो कि बीदर जिले के हुमनाबाद, बसा कल्याण, चिटगुप्पा और कलबुर्गी जिले के निवासी हैं। विदेश में पैसे कमाने गए ये लोग अपने देश, अपने गांव आने का सपना देखने वाले राज्य के 17 लड़के मुसीबत में फंस गए हैं और खाना और घर के बगैर रह रहे हैं। बीदर और कलबुर्गी जिले के 14 लड़कों ने कलबुर्गी के एजेंट को 1 लाख रुपए दिए थे। पैसे देकर उज्बेकिस्तान में काम ढूंढ रहे हैं। एजेंट ने डॉलर का लालच देकर लड़कों को किसी कंपनी में भेज दिया, परंतु लड़कों को कंपनी में काम नहीं दिया गया और न ही उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई। इसके अलावा एक कमरे में रहने को उन्हें मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के मर चुके हैं और उनके शव को उसी इलाके में कहीं फेंक दिया गया है। ये लड़के डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम सिद्धरामैया से ये गुहार लगाए हुए हैं कि उन्हें देश वापस बुला लिया जाए। बसा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ದು ಹೆಸರು ವೀರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಕೆ ಸಲ್ಗರ್ದವ್ರಿ. 1 लाख ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ. ಹಿಂಗೆ ಫಸಾಸ್ಯಾರ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿ ಸಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯಾವ ರೀ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಿಲ್ ರೀ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದವ್ರಿದ್ದು. ನಿರಾಜ್ ಇದು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೀ. 1,25,000 ಕಟ್ಟಿನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ 4ಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅದ ಸರ್. ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು, ಕಲ್ಬಿನೂರು ಅಂತ ರೀ. ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಸೇನಿ ರೀ. 75,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಕಂಪನಿ ಸರಿಯಾಗದ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೇನಿ ರೀ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕಳ್ಸೇನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಊಟದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಗೆಸಿಂದ್ರೆ ಧೋಕಾ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೇನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ ರೀ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭೀ ಚಂದಿಲ್ಲ ರೀ. 1 लाख ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ ಫಸಾಸ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸಾಸ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಂತ ರೀ. ನಾವು ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದೇವೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ರೀ ದತ್ತ ರೀ. ಅವ 85,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ತಂದಿರಿ ಸರ್, ಫಸಾಸ್ಯಾನ ರೀ. ಕಂಪ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಭೀ ನಾವು ಬೇಕು ದುಃಖ ಆಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಬಂದೆವು. ಅಂಕೋಸ್ ಪೋಲೆ ಅಂತಂದು ಕಿಟ್ಟದಾರ. ಕಂಪ್ನಿ ಸರಿಯಾಗದ ಅಂತಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಫಸಾಸ್ಯಾರ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಭೀ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಏನು ಭೀ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ, ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತ. ನಂಗೆ ಇಸ್ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದು ಫಸಾಸ್ಯಾರ, ಧೋಕಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಫಸಾಸ್ಯಾರ, ಏನು ಭೀ ಕೆಲಸ ಬರೋಬರಿಲ್ಲ, ಏನು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ದೂಸರಾ ಕಂಪನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಬಿ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ. ಅದು ಪೈಲೇನೇ ಅದು ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಡ ಅದ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ. ಆವಾಜ್ ಹೊಂಟದ್ರಿ ಸರ. ನನ್ನ ತೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಸರ್. 1 लाख ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿಲಿ ತೆಗೆದು ನಾ ಬಂದೀನಿ ಸರ್. ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಫಸಾಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಗರೀಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬದುಕಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್.
ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಂತ ರೀ. ಅಲ್ರಿ ಇವು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅರವಿಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕುಂಡ್ಯಾಗ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲತ್ತಿದ್ದವು ಕುಂಡಿ ನೀರು. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इस फैसले की सीएम सिद्धरामैया ने आलोचना की। साथ ही गहलोत पर केंद्र सरकार और भाजपा जेडीएस की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने उन्हें नोटिस जारी करने को अवैध और संविधान के विरुद्ध बताया। दरअसल नोटिस में सीएम से पूछा गया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा द्वारा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी घोटाले में कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका कहाँ है? उन्हें केंद्र सरकार पर राजभवन का दुरुपयोग करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को स्थिर करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र सरकार, भाजपा जनता दल सेकुलर की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जल शुद्धिकरण, स्वास्थ्य सेवा और प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के बीच एक मजबूत संबंध की आवश्यकता है। गुरुवार को बेंगलुरु इंडिया नैनो के 3 दिवसीय 13वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनना है। प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के संबंध में हमारा राज्य हमेशा अग्रिम रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय विज्ञान संस्थान, JNCASR, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र जैसे प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के समर्थन से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर भाजपा से गठबंधन करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके दिल्ली आने की खबरें सच साबित हो जाती हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को चुनौती दी कि अगर ये खबरें गलत पाई जाती हैं तो जिन लोगों ने उन पर ये आरोप लगाए हैं उन्हें सियासत छोड़ देना चाहिए। पवार ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल ही में हुई एक औपचारिक बातचीत के दौरान अजित पवार ने खुद कहा है कि उन्होंने दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर नई दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठकें की। पवार ने कथित तौर पर कहा कि मैं उन बैठकों में भाग लेने के लिए दिल्ली जाते समय हवाई यात्रा के दौरान मास्क और टोपी पहनता था। मैंने हवाई यात्रा के दौरान अपना नाम भी बदल दिया था। महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत ने धोखाधड़ी मामले में कार्यकर्ता मनोज जारंगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2013 में धोखाधड़ी के एक मामले में जारंगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल 23 जुलाई को वो अदालत में पेश नहीं हो पाए थे। उन्हें शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जारंगे के वकील हर्षद निम्बालकर ने गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने वकील हर्षद निम्बालकर के आवेदन को स्वीकार कर लिया और जारंगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। बता दें कि जारंगे और अन्य 2 के खिलाफ 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जारंगे और सह आरोपी ने 2012 में शिकायतकर्ता से संपर्क किया था और उसे 30 लाख रुपए की पेशकश की थी। हालांकि 16 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था और शेष रुपए को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ही अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कहा था। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट कंपनियों से मिले राजनीतिक चंदे की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एसआईटी से जांच करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस कथित घोटाले की जांच की जरूरत नहीं है। जिन मामलों में किसी को आशंका है, जिनमें वो कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, अगर समाधान नहीं होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन सीपीआईएल की याचिका में राजनीतिक चंदे के जरिए कथित घूस देने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले की सीबीआई या फिर कोई भी अन्य जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करवाई जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन में किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि आजकल यहां महाभारत सुनने का किस्सा ज्यादा चलता है। उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की जब सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित ने आयुष मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछने के दौरान रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख किया। इस पर बिरला ने कहा, आप महाभारत मत सुनाइए, प्रश्न पूछिए। आजकल महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चलता है यहाँ पर। लोकसभा अध्यक्ष ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोमवार को सदन में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाए जाने संबंधी महाभारत के प्रसंग का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था और कहा था कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी उन पर छापे की योजना बना रही है। उनके इस बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी के दावे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। जब आप गलत काम करेंगे और ईडी के दायरे में आएंगे तो आप पर छापेमारी होगी। आप ये भूल जाएं कि आप एक रजवाड़े में पैदा हुए हैं। यहाँ पर लोकतंत्र है, इसमें कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। यदि आपने कोई गलत काम किया है तो ईडी छापेमारी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आप गलत काम करने में माहिर हैं। 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को मुख्य अभियुक्तों
सैफुर रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन के खिलाफ दाखिल किया है। आरोप है कि अभियुक्त 2008 में जयपुर में हुए भयानक घटना के दौरान बम लगाने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। जयपुर में 13 मई 2008 को 20 मिनट के अंदर 7 स्थानों पर 8 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में एक विशेष अदालत ने दिसंबर 2019 में 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को बम लगाने और धमाके करने का दोषी ठहराया था। इस मामले में एक और अभियुक्त शहबाज अहमद पर ईमेल कर धमाकों की जिम्मेदारी लेने का आरोप था, मगर अदालत ने उसे नाबालिग होने के आधार पर बरी कर दिया था। अब वक्त का और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राज्यसभा में शुक्रवार को पूरा सदन हंस पड़ा। मामला ये था कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जैसे ही कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इसे सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े। गौरतलब है कि जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा जय अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारे जाने पर नाराजगी जताई थी। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने बाद में कहा कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी फैन हूं। सभापति की बात को सुनकर जया बच्चन ने विनम्रता से हाथ जोड़ा। जया बच्चन ने सदन में कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं कि इसके बाद धनखड़ हंसने लगे। इसके बाद जया बच्चन ने कहा कि क्या आपको आज लंच ब्रेक मिला? धनखड़ ने कहा कि यही कारण है कि आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं, उनका नाम लिए बिना आपका खाना हजम नहीं होता है। राजस्थान के आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए विस्थापन की कार्रवाई तेज होती है। वहां बवाल मच गया है। आज प्रभावित परिवारों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज कर दिया। इससे ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात देखकर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले
दागे। इससे वहां हालात और बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस ने फिर लाठी भांजी। लगातार बिगड़ते माहौल को देखकर वहां कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। इस बीच बारिश आ जाने से माहौल कुछ ठंडा पड़ गया, लेकिन तनाव बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बांसा जिले के छोटी सरवन इलाके में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना प्रस्तावित है। इसके लिए वहां ग्रामीणों की जमीन अवाप्त की गई है। प्लांट से प्रभावित हो रहे लोग मुआवजा देने के बावजूद भी जमीन खाली नहीं कर रहे थे, लिहाजा आज पुलिस प्रशासन ने उनको वहां से हटाने के लिए ये सख्त कदम उठाया। लेकिन पुलिस प्रशासन की तैयारियां उस समय धरी की धरी रह गई जब हजारों की संख्या में ग्रामीण और महिलाएं इसके विरोध में उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के 14 युवक उज्बेकिस्तान में फंसे हुए परेशानी में हैं। उन्हें वापस लाने की उन युवकों ने पीएम और सीएम से किया अनुरोध। केंद्र और बीजेपी जेडीएस की कठपुतली के रूप में कर रहे हैं काम। राज्यपाल के नोटिस जारी करने पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित समाधान आवश्यक, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। शाह से मिलने दिल्ली आने की बात सच साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा, अजित पवार की विपक्ष को चुनौती। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में घोटाले की एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।